Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth, a study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. आप सबको इस सतोलॉजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है और सतोलॉजी के एपिसोड से आपकी बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज. Today I was checking myself on AI and it gave a lot of information. I'm really shocked that how AI can collate so much information and very amazing. But when I was searching for information on Saraswati River, information was very weak because the AI is picking up information from mostly Western research. आज जब मैं अपने आप को AI पे ढूंढ रहा था तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला मेरे बारे में जिससे मैं पूरी तरह अचंभित हो गया. लेकिन जब मैं सरस्वती नदी के ऊपर एआई से पूछ रहा था तो टोटली गलत इंफॉर्मेशन आ रहा था कि लुप्त हो गई, कब आई. मैं आपको बता दूं, महाभारत में सरस्वती नदी के तट पर युधिष्ठिर जाते हैं काम्यकोन के बाद. काम्यकोन, द्वैतवन और उसके बाद जाते हैं. In Mahabharat, Maharaj Yudhishthir goes to the banks of river Saraswati after Kamyakwan and near Dvaitwan. And we all know, in my research on the place called Pehova in Kurukshetra, that is a place of Maharaj Prithu's birth, and his coronation happened at the source of river Saraswati. पृथु महाराज कोरोनेशन, राज्याभिषेक उनका हुआ, एक्चुअली राज्याभिषेक हुआ पेहोवा में और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पे. Today I'm going to take you through that, and there are many things important to note here in this particular episode, and again I have covered it through references from multiple Purana. Now let's go back to the place where it actually happened. So ये जो मैप है ये मैंने इसे बहुत सारे मार्कर्स किए हुए हैं. So one of the things which says about Prithu Maharaj, if I read the Sanskrit, it says Churnayan Swadhanush Kotya Girikutani Rajarat Bhumandalam Idam Vanya Prayash Chakre Savam Vibhu. Prithu Maharaj leveled all rough places on the surface of the earth, Bhumandal, not globe, Bhumandal, by breaking the hills with the strength of his bow, and by his efforts, the surface of Bhumandal became almost flat. And I was telling you about this also before, that the word Prithvi comes from King Prithu, who is the son of Vena. From his arms, he was born from his arms. And also the Nishad Jati also came, uska bhi origin, Bahuk was a king. Nishad Jati bhi Bahuk se hi aaya hai. So Prithu and Saraswati. So we are talking about Saraswati flowing. Now if you look at the Prithu Maharaj's story, it's from the beginning of time. We are telling a very old story when Prithvi was not flat, was not, a lot of places, most of the places were not flat. We're talking about that time. And this story is very, very old. And therefore we see not many places Prithu Maharaj's story is discussed, but it's in Bhagavad Purana. So this incident happened right after जो पृथ्वी है वो came from the ocean. तब से ये हिस्ट्री है. So this is a very old history. And also these places are going to be in my new book which is coming out. If you have not read the original atlas, you will not understand my next book, which is the Magical World, and that I am working on. So that's the show today. And many, तो आप लोग शो से जुड़ते रहिए. Do like, share, subscribe, and let me know your feedback. So let's get into the topic now, right away. And can you hear me properly? If you can,
then just press, let me just check on the mic system, and yes, I think so. Okay, so let's get back into the maps. You'll love it today. Now this is the place I am showing. I'll remove the banner. ये जो मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ. So ये जो map है, you can see my map moving, and I will start drilling down into this place, which is going back to many places here. It may not be very clear. So the yellow markers that you see, the big yellow markers, is a mark which I am referring to. So this is the place which says to be origin of Saraswati Nadi, which is when the river turns towards east. Is that exactly at that spot is where the Ashwamedh Yajna was done for Prithu Maharaj. So here the Saraswati river goes east. Now after this, crossing here, Saraswati Nadi goes towards the southwest and goes through the plains and into Haryana side. So where it is turned toward east is exactly the spot. जब वो पूर्वी दिशा की तरफ सरस्वती नदी मुड़ती है, that exactly is the spot where the यज्ञ was happened. उसके पास में आप देखेंगे व्यास गुफा, गणेश गुफा और origin of सरस्वती, भीम पुल, Mana, and also the Mana village, which we have discussed in my book Origin Atlas, where it is said that Pandavas went through that towards Swarg. And Muchukund Gufa. Now more important, now I'm going to zoom out, क्योंकि आपको ये दिखना चाहिए पूरा, क्योंकि यहाँ पे गंधमादन पहाड़ पे Gastoli is a very important area. Now this is a Mana 1. If I highlight it, this is a mountain in the Gastoli district of Uttarakhand, and there is a Saraswati Parvat right above it here. So this mountain and the glacier, this is the area where actually you can see the origin of river Saraswati. लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ का जो स्पॉट है, which is actually below over there where I was showing earlier. ये मना का पहाड़ है, ये मना का गांव इधर है, बट यहाँ पे जो नदी जब पूर्वी दिशा की तरफ मुड़ती है, there exactly you see this place where the Ashwamedh Yajna happened, Prithu Maharaj. Many important lessons to be learned here and places have to be there if you can visit. So यहाँ पे Alaknanda river from the west is meeting Saraswati river coming from north, and there is a Saraswati glacier and Saraswati mountain towards the back, and there is also another mountain which is Hathimat, जिसका भीम से संबंध है, which I showed earlier, and which is Hathi Parvat, which is here, and which is a part of the Nanda Devi National Park, almost on the banks, वहाँ पे है, and नीलकंठ पहाड़ इधर है, we all know. So this is the place where the Ashwamedh Yajna of Prithu Maharaj happened. Now why this story is very important? Now Prithu Maharaj has multiple, if you see the contribution उनका बहुत ज़्यादा है. पहली बार इनका और ब्रह्मा का संवाद होता है. जब इनका राज्याभिषेक होता है, तब ब्रह्मा उधर आते हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ ये रोक देते हैं ब्रह्मा के कहने पर. इंद्र जो इनसे काफी नाराज है, ये इंद्र को डर है अपनी पोजीशन खोने का, इंद्र उस समय काफी विघ्न डालते हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए. इनका अश्वमेध यज्ञ भी चुरा लेते हैं, और पृथु महाराज को विष्णु का ही अवतार माना गया है. इसलिए जब इनका जन्म होता है, इंद्र, शिव, सभी देवता इनको आके गिफ्ट देते हैं. और भूमि उस समय भोजन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि भूमि को ऐसा लगता है कि पापी व्यक्ति पृथ्वी पे भर चुके हैं भूमंडल पर, तो भोजन नहीं दे रही है, अन्न दे रही है, और अनेक प्रकार के संसाधन नहीं दे रही है.
इसका मतलब यही हुआ, उसके पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है भूमि पर, यहाँ पे अकाल पड़ा हो और लोगों ने तरह तरह से अपने जीवन में कठिनाइयों का अनुभव किया है। लेकिन जब भगवान विष्णु राज करते हैं पृथ्वी पे, तो किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम राम राज्य की बात करते हैं, कोई भूखा ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके शरीर पर कपड़े ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके घर नहीं हो, तो वो सब मनुष्य के लिए दरिद्रता का चिन्ह है। अगर राजा सक्षम है तो वो सब चीजें पृथ्वी पर नहीं होंगी। तो यहाँ पे पृथु महाराज स्वयं साक्षात हरि के अवतार है और वो भूमि को दंड देने की कोशिश करते हैं। भूमि एक गौ का रूप धारण करके आती है कि गोवध नहीं होता। वहां पे भूमि को तब भी पृथु महाराज को मालूम है कि भूमि गो बन के आई है, लेकिन तब भी वो दंड देने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये गो वंश का सहारा लेकर अपने आप को बचा रही है। और बाद में पृथ्वी माता सब तरफ दौड़ती हैं गाय के रूप में, लेकिन वापस पृथु महाराज के पास आ जाती है, क्योंकि उनको मालूम था कि अब कोई चारा नहीं है। और उनको प्रार्थना करती है कि आप तो नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय च, आप तो गाय और ब्राह्मण के रक्षक हैं, तो आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? तो बताते हैं अपना कारण कि तुमने सभी संसाधनों को छुपा लिया है। तो पृथ्वी बोलती है कि बहुत सारे पापी व्यक्ति, पापचारी व्यक्ति मेरे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे आज के समय में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारा जो सोना है या फिर जो हीरे हैं, मोती है, अभी धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहे हैं पृथ्वी पे पाना। जिस तरह का हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि आसानी से उपलब्ध थे, अब वो नहीं है। धीरे धीरे छुपाती जा रही भूमि देवी, क्योंकि अधार्मिक व्यक्तियों ने पृथ्वी को खोद खोद के हर जगह से उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया है। और उससे पृथ्वी भी जो पदार्थों को, जो बहुमूल्य हीरे मोती, इनको छुपाती है। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, डायमंड की जो माइन है इन साउथ अफ्रीका, डाबियर्स की, उसके अंदर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। और भी जगह जगह सोने की जो खाने हैं किर्गिस्तान में है, जिसको जाम्बू सुवर्ण भी बोलते हैं। और एक सुवर्ण प्रस्थ जो सुवर्ण द्वीप पर है, जो इंडोनेशिया में खाने हैं, उस सभी में खाने काफी नीचे की तरफ चली गई हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग गोल्ड अप, बहुत देर लगती है उसमें, और उसको प्यूरिफाई करने में बहुत समय लगता है। और भी जगह जगह थी, जैसे कैलिफोर्निया को गोल्ड कोस्ट बोला जाता था, कि वहां पे गोल्ड के पार्टिकल्स सैंड में है, फिर उसको आप बना सकते हैं सोने में, सॉलिड गोल्ड में। उसका प्रोसेसिंग भी काफी मुश्किल हो गया है एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो इसलिए गोल्ड जो स्टैंडर्ड है, इट बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर स्टैंडर्ड नाउ, इज कंसिडर्ड अ रेयर अर्थ ऑलमोस्ट। तो पृथु महाराज के समय में भी वही चीज मेरे को दिखाई देती है, और उसकी वजह से नाउ पृथु महाराज के पूरे राज्य में गरीबी फैल रही है। और जैसे वो शासन लेते हैं, उनके पिता का जो शासन था वेण का, काफी दुराचारी शासन था। उसने हर प्रकार के यातनाएं दी थी अपने नागरिकों को, हर प्रकार के ब्राह्मणों का उसने जो उनके जो राइट्स हैं उनका खनन किया था। अब राइट्स का तो हमारी दुनिया है नहीं, उनके कर्म, उनके स्वधर्म पे ठोस पहुंचाई थी। तो उसकी वजह से उनके पाप कृत्यों के द्वारा पृथ्वी ने सारे अपने जो संसाधन छुपा लिए थे। अब पृथु महाराज के जन्म के बाद अब उन्हीं संसाधनों को वापस प्राप्त करने के लिए पृथु महाराज का जन्म हुआ, ताकि पृथ्वी पे शांति आए। लेकिन एक दूसरा मतलब ये भी था, जैसे पुराणों में बताया जाता है कि वरादेव ने भूमि को समतल बनाया। अब वरादेव के बाद, वरादेव को कभी कभी धराधर भी बोला जाता है, धराधर, क्योंकि उन्होंने धरा की स्थापना वापस करी और उसको स्टेबल किया। क्योंकि धरा जो है एक कोने से 100 योजन गर्भोदक में घुस चुकी थी, जैसे तिरछी होके नीचे चली गई थी, धस गई थी। 100 योजन मतलब 800 मील नीचे, उसको वापस वरादेव ने स्थापित किया। सारे पहाड़, नदियां वापस, सारे पहाड़ जो 7 द्वीप हैं, उन सबका वापस निर्माण किया, 7 पहाड़ों का निर्माण किया वरादेव ने। तो काफी थ्योरीज से कैंसिल होती हैं, जो कॉन्टिनेंटल डिवाइड थ्योरी, कॉन्टिनेंटल
obstruction theory, continental colliding theory, all these theories are debunked totally if you look at this episode. और इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं कि अगर इस भागवत पुराण में या फिर महादेव पुराण से जो मैंने रेफरेंस लिया है, आई कैन पॉइंट इट टू द मैप एग्जैक्टली कहां पे हो रही है। जहां पे सरस्वती उद्गम क्षेत्र से पूर्वी दिशा की तरफ जाती है, जस्ट जहां से पूर्व की तरफ मुड़ती है, वहीं पर अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो आपको मैंने मैप पे दिखा दिया एग्जैक्टली। मतलब एक श्लोक में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हर श्लोक अगर मैं इसको इस तरह से प्रूव कर सकता हूं तो बाकी सब चीजें तो प्रूव कर ही सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तो और उसको तो जब पृथ्वी को दोबारा समतल बनाया गया पृथु महाराज के द्वारा, क्योंकि उसका नाम अब पृथ्वी है, क्योंकि भूदेवी मतलब अगर विष्णु पृथ्वी को देखें तो एक तरीके से, क्योंकि विष्णु के अवतार है तो वराह से भिन्न नहीं है, तो वराह और भूदेवी के पुत्र मंगल है, सॉरी बुध है, तो वराह, ये वराह का ही अवतार हो गए एक तरीके से पृथु महाराज। लेकिन यहाँ पे जब ब्रह्मा आते हैं इनके यज्ञ में और काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा की बात मान लेते हैं। अभी ब्रह्मा जो है, अभी आप सोचेंगे कि ब्रह्मा और पृथु का क्या रिश्ता है, एक विष्णु है दूसरे जीव है, तो ब्रह्मा क्या, लेकिन ब्रह्मा अभी भी रजोगुण के प्रधान है। और मैंने आपको किसी शो में बताया भी था, कभी कभी ब्रह्मा और विष्णु दोनों को एक ही माना जाता है, और बहुत जगह जब ब्रह्मा होते नहीं है तब विष्णु स्वयं ब्रह्मा बनते हैं। तो यहाँ पे इस एपिसोड में ये पृथु महाराज ब्रह्मा को अपने से उनका मान रखते हुए वो उनकी बात मानते हैं, तो ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं, उनको वरदान देते हैं कि तुम अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। जैसे ही ब्रह्मा का वरदान मिलता है, अब गरुड़ के ऊपर बैठ के भगवान विष्णु स्वयं आ जाते हैं। और जब वो भगवान विष्णु आते हैं गरुड़ के साथ, तो उनकी आभा तो देखने को ही बनती है, और उतरकर एक हाथ गरुड़ पे रखकर खड़े हो जाते हैं, शांत खड़े हो जाते हैं चुपचाप। पृथु महाराज के पास कोई शब्द बचते नहीं है। ये सारा इंसिडेंट यहीं पर हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सारा जो कथा है वो इसी जगह पे हुई है, और इसके क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ में एक कथा हुई है पूरी। तो ब्रह्मा भी यहाँ पर आए, विष्णु भी यहाँ पर आए, सारे देवता भी, विष्णु आ गए तो गरुड़ भी आए होंगे, गरुड़ के ऊपर ही आए हैं, और सारे देवता खड़े होके ये एपिसोड को देख रहे हैं, पृथु और विष्णु का संवाद। भगवान विष्णु जब आते हैं तो सारे देवता उनके साथ आते हैं, तो आकाश में सारे देवता विद्यमान है। तो ये जगह बहुत ही पावन जगह है, बहुत ज्यादा पावन जगह है। अगर आप लोगों को कभी जाने का मौका मिले यहाँ पर, तो यहाँ पर देवताओं को, पितरों को पूजा जरूर करें आप जाके, अगर मौका मिले तो। और मैं ये बात जानता नहीं हूँ कि वेद व्यास गुफा जो बताई गई है, गणेश गुफा बताई गई है, कि गणेश गुफा में बैठेंगे या वेद व्यास गुफा में बैठेंगे, क्योंकि पूरा साम्राज्य वेद व्यास का है। वेद व्यास को सारे राजकीय शासन और राजकीय सुविधाएं अवेलेबल है, क्योंकि इस समय में जो राजा है वो साधुओं की सेवा में तत्पर है, और साधुओं की सेवा में तत्पर है, इसकी वजह से यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उनको अवेलेबल है। तो बट ये जगह वही है जहाँ पे विष्णु का अवतार हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे जो मंदिर हैं आपको दिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे मंदिर भी हैं। और इन मंदिरों पे अगर आप पास में जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेंगे आपको। मैं यहाँ पे पिछले 6-7 साल पहले गया था यहाँ पे, तो काफी लंबा समय हो गया मुझे वहां पहुंचे हुए। और उसका रास्ता तो आप लोगों को मालूम ही है, अगर आप जाना चाहते हैं तो उत्तराखंड में देहरादून से आपको, मैंने टैक्सी ली थी, लेकिन कुछ हद तक ही वहां पे जा सकते हैं, फिर उसके बाद आपको रोड्स बड़ी पतली है। अब तो रोड्स बहुत अच्छी हो गई, मैंने सुना है। लोग पहुंचते हैं वहां पे, अभी भी पहुंचते हैं, थोड़ा दिन लगते हैं वहां पे, एटलीस्ट मुझे तो 2 दिन लगे थे, लेकिन आप पहुंच सकते हैं, धीरे धीरे जाना पड़ेगा वहां पे, लेकिन रीचते हैं। तो ये वही जगह है, और यहाँ पर जाके आप लोग तपस्या कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैंने बुक में लिखा हुआ है कि कौन सी पूजाएं की जाए देवताओं के लिए और पितरों के लिए, वहां पे पूजा की जाए।
और इस कहानी को याद भी करिएगा वहां पे जाके। ये छोटा शो था आप लोगों को बताने के लिए। सरस्वती नदी बहुत समय से है पृथ्वी पे, महाभारत काल तक रही है और आज भी है। बहुत जगह पे आप हरियाणा में, राजस्थान में सरस्वती नदी का उद्गम कहीं कहीं पे देख सकते हैं। सरस्वती नदी लुप्त नहीं हुई है, बहुत जगह बार बार निकल कर आती है और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगी। मेरी बुक में उसका पूरा पथ हर जगह मेंशन है, द ओरिजिनल एटलस में। और नई पुस्तक में थोड़ा अलग कंटेंट रहेगा, लेकिन आप जरूर देखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस लिखिएगा एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। टिल नेक्स्ट शो फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय जगन्नाथ।